हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बाकी कॉन्सेप्ट्स को आगे भी लर्न करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट, डेवलप द फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द टॉपिक इटसेल्फ ओनली डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि whenever the light ray is passing through some slit or hole, there is certain amount of spreading of light into the region of geometrical shadow, and that is known as diffraction of light. बच्चों, in day-to-day life we are not able to observe the diffraction of light whenever the light is falling on some obstacle or some slit. Maybe what is the reason for that? And if you want to observe the diffraction pattern through some obstacle or through some slit, then what should be the approximate size of slit as compared to the wavelength of the light? So all those points we are going to discuss now. So the question is, what should be the size of aperture or slit? ठीक है, what should be the size of aperture or slit or hole as compared to wavelength of light wave in order to observe diffraction pattern. In order to observe diffraction pattern. In order to observe diffraction pattern. बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा with some activity, with some diagram, that how can we understand the concept of diffraction of light. So let us see. यहाँ पर बच्चों प्रश्न यह पूछा गया है कि size of slit या aperture क्या होना चाहिए as compared to the wavelength of light, so that there should be diffraction of light, and diffraction of light should be such a way that it can be observed on screen. So बच्चों, यहाँ पर एक हमने स्लिट कंसीडर कर लिया. दिस इज सम स्मॉल स्लिट ए बी. ठीक है, आपको डायग्राम में यहाँ बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअल में इस तरह से नहीं है, छोटा स्लिट है. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने सोर्स को प्लेस किया है. वी आर प्लेसिंग सम सोर्स हियर. सो मे बी सोर्स इज समवेयर और प्लेन वेव फ्रंट इज कमिंग टू दिस पॉइंट. Suppose we are considering a slit AB, a rectangular slit AB, and this is a plane wave front. This is a plane wave front coming, or incident wave front. This is plane wave front getting incident on slit AB. ये जो plane wave front है बच्चों, यह incident wave front है. यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमने screen consider कर लिया. This is screen. So यहाँ पर लिख रहे हैं, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट. अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन रेक्टेंगुलर स्लिट ए बी. देन बच्चों, देन व्हाट विल बी द डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, and what will be the shape of diffracted wave front? This is the incident wave front. So we can say this is the incident wave front. और यह wave front जब बच्चों यहाँ पर आएगा, propagate करते हुए आगे बढ़ेगा, so यहाँ स्लिट का हर एक पॉइंट जो है that will become the source of each and every point of slit AB will become the source of secondary wavelets. Yes or no? When this wave front will reach to the slit AB, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, when the plane wave front reaches slit AB, then all the points of slit AB will act as new source of secondary wavelets new source of secondary wavelets
as per the Huygens wave theory, as per the Huygens wave theory, Huygens wave theory के अकॉर्डिंग बच्चों जब यह इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ AB पर रिसीव होगा स्लिट पर, तो सारा पॉइंट जो स्लिट AB का है they will act as fresh or new source of secondary wavelets. And now what will happen? All this point will produce secondary wavelets in all the direction, and all the wavelets, secondary wavelets, will start at the same time, and they will start vibrating in the same phase at the time of starting. जब वो सारे पॉइंट्स AB पर हैं तो उस टाइम पर सभी एक ही साथ में एक ही फेज में वाइब्रेट करना स्टार्ट होंगे और सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे. यस और नो? सो अगर बच्चों इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट is less than the size of aperture, यहाँ पर पॉइंट लिख रहे हैं बच्चों, I am erasing this part. So if the size of aperture, if the size of aperture is greater than the wavelength of, is greater than the wavelength lambda of incident light, then what will be the shape of the diffracted wave front? तो बच्चों ऐसा होगा कि ये जो है ये ऑलमोस्ट ऐसा रहेगा और यहाँ पर साइड में केवल एजेस पर हमें बेंडिंग दिखाई पड़ेगा लाइक दिस. ये यहाँ पर ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट और ये बेंडिंग, और यहाँ पर ये ऐसे ऑलमोस्ट स्ट्रेट, फिर ये बेंडिंग और ये इस तरह से और ये ऑलमोस्ट ये पोर्शन स्ट्रेट होगा. मोस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी स्ट्रेट, और ये जो पार्ट आप जो बेंडिंग दिख रहा है आपको, दिस बेंडिंग, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज डिफ्रैक्शन, दिस इज डिफ्रैक्शन. सो डिफ्रैक्शन मींस व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू सम स्लिट और होल. सो दिस इज व्हाट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द एजेस. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. And diffraction is highly concentrated around the edges or around the corners. So this is diffraction. This is diffraction of light. This is diffraction of light. So यहाँ पर बच्चों diffraction बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता है, केवल edges पर ही diffraction focused है. और diffraction pattern जो है, diffraction of light जो होगा बच्चों, bending of light जो होगा, वो highly concentrated होगा. कहाँ पर? केवल एजेस पर. अच्छा बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज दिस? ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. सो व्हेन दिस कंडीशन विल बी satisfied, then only this type of diffracted wave front and this type of least diffraction effect will be seen. So if the size of aperture is greater than wavelength of incident light, then the diffraction of light, will be least, and diffraction is highly concentrated around the edges, and the diffraction is concentrated around the edges only. You can see this diagram and this is representing the diffracted wave front. बच्चों यह स्क्रीन पर रिसीव होगा डिफ्रैक्टेड पैटर्न या जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, दिस डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन एंड दे विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. So that will be the second part of discussion, or later point of discussion will go into that into that section जब हम लोग उसको पढ़ेंगे. अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस में है, तो यहाँ पर इतना ही. आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें भी आपको वापस फिर से इसे एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली. यहाँ पर ये केस सेटिस्फाई हो गया बच्चों. दूसरा केस है, अगर सेम डायग्राम है बच्चों, इसे हम दोबारा रिपीट करके बनाएंगे, आप भी इसे दोबारा बनाएंगे. सो आप यहाँ पर बोल सकते हैं दिस इज सेकंड केस. फर्स्ट केस था अर्लियर, दिस इज सेकंड केस. सो केस 2 जो प्रीवियस केस था
जो पहले हमने स्टडी करा उसको आप केस 1 से नोट करेंगे एंड दिस इज सेकंड केस और केस 2. सो इफ द साइज ऑफ एपर्चर इज इक्वल टू और almost equal to wavelength of light, wavelength of incident light, wavelength of incident light, then what will happen? Then तब diffraction of light कैसा होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, diffracted wave front कैसा होगा, that we are going to observe. यहाँ पर again हमने rectangular slit AB consider किया. This is the screen and we are considering incident wave front as plane one. So this is plane wave front getting incident. So this is incident plane wave front. And what is the wavelength of this incident wave front? This is lambda और incident light का wavelength क्या है बच्चों? lambda है. जब यहाँ पर AB पर again आकर के स्ट्राइक करेगा ये प्लेन वेव फ्रंट, तो ये AB का सारा पॉइंट कैसे वर्क करेगा बच्चों? Each and every point of the slit AB will act as source of secondary waves or new source of or fresh source of secondary wavelets, and the secondary wavelets will spread in all the directions. So अगर बच्चों यह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, if this condition is satisfied, अगर साइज ऑफ एपर्चर या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर कंपैरेबल है बच्चों विद द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो इन दैट केस बच्चों डिफ्रैक्शन जो होगा, आप थोड़ा स्लिट छोटा ही बनाइए, यहाँ पर और छोटा बना सकते हैं, ठीक है. सो अब क्या होगा बच्चों, जो डिफ्रैक्टेड या जो सेकेंड मीडियम में, जो सेकेंड मीडियम में जो ये जो पोर्शन है स्क्रीन और स्लिट के बीच का पोर्शन है, यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा? सो दिस इज स्लिट AB. सो यहाँ पर सभी डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में लाइट रे स्प्रेड होगा, इधर भी, इधर भी. सो अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ईच पॉइंट विल एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स. सॉरी. सो यहां से इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बच्चों, यहां पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा. So this is how we are drawing spherical wave front. This is how we are drawing spherical wave front. So this is the diffracted wave front. This is the diffracted. This is the diffracted wave front. And in this case, the diffraction of light will be more. यहाँ पर लिख सकते हैं diffraction. Then diffraction of light will be prolonged or more. ठीक है. पूरा लाइट देखिए यहाँ पर बेंड हो गया है, यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट था और यह बिल्कुल बेंड होकर के स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है. सो दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट. शेप ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा बच्चों? तो स्फेरिकल होगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब भी साइज ऑफ एपर्चर वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होगा या कंपैरेबल होगा, तो जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा और डिफ्रैक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो. एंड दिस इज द सेकंड केस दैट यू अंडरस्टैंड. बच्चों लाइट का जनरली डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. व्हाई? बिकॉज इजिली लाइट का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज लाइट का जो वेवलेंथ है बच्चों, दिस इज अराउंड 10 की पावर -6 मीटर, और हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्स्टेकल है या स्लिट है, उसका साइज जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या हो जाता है? दिस इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो ये जो साइज है ऑब्स्टेकल या स्लिट का साइज जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बहुत ज्यादा है. यहां पर लिख सकते हैं इन जनरल और डे टू डे लाइफ में जो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाते, उसका क्या रीजन है? द रीजन इज साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट
इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, और जब वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा होगा साइज ऑफ स्लिट या साइज ऑफ एपर्चर, तो देयर विल बी लीस्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, or we can say diffraction is not easily observable, diffraction is not easily seen। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अगर हम साउंड वेव की बात करें बच्चों, तो साउंड वेव का वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, और वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या स्लिट वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव के कंपैरेबल होता है, और इस वजह से साउंड वेव का डिफ्रैक्शन हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट लाइट वेव का वेवलेंथ कम होने के कारण एज कंपेयर टू ऑब्स्टेकल और स्लिट, लाइट वेव का या लाइट रे का डिफ्रैक्शन इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। केवल और केवल हम तभी लाइट रेज का या लाइट वेव का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, यह डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा जब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द width or slit width or aperture width, whatever we are considering, or some obstacle जिसके थ्रू हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। सो इन वन वर्ड इफ वी से, अगर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो साइज ऑफ स्लिट या एपर्चर मस्ट बी कंपेरेबल विद द, और मस्ट बी इक्वल टू, और मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली। मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी और भी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।